नर्वस सिस्टम के स्टार्टिंग, नर्वस सिस्टम तुमने पढ़ा हुआ है शायद 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा, तो ये और भी ज्यादा आ रहा है, बट तुमको बेसिक क्लियर होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, देयर आर 4 फंक्शंस. सबसे पहले तुमको आना चाहिए व्हाई डू वी नीड नर्वस सिस्टम. So there are 4 functions why you need nervous system. The first one is it keeps us informed about the surroundings. ठीक है, तो क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अभी बढ़िया काम कर रहा है, और अगर बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आ गई, so you listen first and then you will see what happens over there, what is happening over there. This you are kept informed about the surrounding. उसको छोड़ो, internally भी तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो तुमको पता चलता है कि नहीं. For example, कभी पता अगर हम बैठे आराम से and if there is palpitation that starts happening, palpitation होने लगता है, तो तुमको पता चलता है ना कि तुम ऐसे पागलों की तरह बैठे ही रहते हो, कुछ करते नहीं, you don't do anything about it. If there is pulsating pain here or in the head or in somewhere, you know about it. So nervous system helps you to understand yourself and any changes that are happening around you. The other one is 3 things, very very important. One is it helps you to remember, it helps you to think, and it helps you to reason. Now these 3 things are very much different. If I ask you, why were you absent the other day? You will give me a reason, but for that reason you will also have to remember, or else तुमको याद करना पड़ेगा. एक टेस्ट ले लो अभी तुम्हारा मैं, तो you have to remember things and jot it down, right? If I give you an essay topic at the spur of the moment, you will have to think for 10 minutes and then you have to start writing. And then comes reasoning. So either you reason out correctly or you just make up a story, whatever it is. But whenever I ask you a why question, ये क्यों नहीं हुआ करके, या तो तुम सच बताओगे या तो तुम एक स्टोरी बनाओगे, पर तुम रीजन नहीं बताओगे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम मस्त काम कर रहा है. समझ आया? नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, so I'm talking about brain. Is your brain okay? Listen. Next up, next up, it helps to control and harmonize all the voluntary action. Do what you understand by voluntary action? The actions that are according to your own will. If I wanted to write something on the board, I'll go over there, pick up a chalk and write it down under my own will. If I'm hungry, I'm going to go out and order something and eat under my own will. तो एक तो ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन, और सेकेंड ही कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन. इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग, all of this digestion, all of these are not under your control. अब ऐसा मत बोलना ब्रीथिंग का मैं कंट्रोल कर पाता हूँ, नहीं, पागलों की तरह बोलना मत. ब्रीथिंग का पेस तुम थोड़ा सा हैंडल कर पाओगे. ब्रीथिंग तो ऐसा नहीं है ना कि अभी बंद करके 2 घंटे बाद चालू करूंगा, वापस थक गया तो लाइफ थका देगी. सिंपल. तो ये भी हैंडल करना नर्वस सिस्टम का काम है. इसी से आगे हम जाते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल पे. द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल इज वेरी 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 इजी. Look on to the diagram that's given to you alongside and you'll be able to understand a neuron, a basic structure of neuron, wherein you will see that there is a cell body that you will see. ठीक है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी. इसके अंदर होता है न्यूक्लियस. सेल बॉडी के दूसरे भी नाम तुमको दिए गए हैं. If you are able to see, the cell body is also called as perikaryon. Yeah, it can be also called as cytosol. Okay. Next up, this cell body has projections. Are you able to see these projections out? इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. क्यों साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन? क्योंकि इसमें तो भरा पड़ा है ना साइटोप्लाज्म. वही साइटोप्लाज्म अगर बाहर निकल रहा है तो मैं उसको बोलूँगी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन. बट इट हैज नेम्स एंड द नेम इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स. Okay. There is a long extension that comes out of the cyton. This is called as axon. This is called as axon. However, the axon is covered up by a covering, and that covering is called as myelin sheath. So if you look at myelin sheath is not continuous, rather it is interrupted at several places. So it is called as the interruptions, or the notch-like structure is called as the node of Ranvier. Okay, node of Ranvier. And this is myelin sheath that I am talking about.
ठीक है। लास्ट में अगर तुम देखोगे तो ये एंड हो जाता है, और ये एंड जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल ब्रांचेस या फिर एक्सॉन एंडिंग्स, एनीथिंग यू कैन से। इजी, याद रह गया। अब इसमें से क्या नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा था? In the diagram if you see there is something written as Nessel granules. Nessel granules are present in the cytoplasm, just remember this. Okay, next up साइटोप्लाज्म के अंदर the same thing, branches को हम dendrites बोलते हैं, main वाले को dendrons, so you can write it. What is wrong with you today? Okay. नेक्स्ट भी है इस न्यूक्लियस, उसी में भी है माइलिन शीथ भी। अगर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है न्यूरोलेमा। आई एबल टू सी न्यूरोलेमा करके लिखा हुआ है। न्यूरोलेमा इज द थिंग दैट मेक्स अप द माइलिन शीथ। उसका जो मटेरियल होता है, सेल्स होते हैं, उसको न्यूरोलेमा बोलते हैं। तो यही दो चीज एक्स्ट्रा है, इसके अलावा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्स्ट्रा है। ओके, सिंपली रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकलेक्ट द न्यूरॉन। ये दिखता है न्यूरॉन जैसा, तो दिखाना पड़ेगा इसको, तो याद कैसे रहेगा? This palm region that you see is the cyton. These 5 are the dendron. What did I show? You got the 5 fingers cyton के वो dendron. कहाँ है? आपके पीछे और उसमें क्या पढ़ा है? ये 5 fingers. जब मैं पढ़ा रही हूँ तब क्या लिख रहे हैं? सुन लिया नहीं बेटा, है ना? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। You want to ignore me? No, ना? Let's see. Okay. This is the cyton. Okay. This is the nucleus. These are the dendrons. This is the axon. Axon के ऊपर एक कवरिंग है, ऐसा सोचो तो माइलिन शीथ हो गया। And this elbow region is the axon ending. मैंने जितना बोला है, अगर इतना भी ड्रॉ करोगे तो तुमको फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि इसमें 4 लेवल तो आ गए। मैक्सिमम तुमको डायग्राम आता है 3 मार्क का, जिसमें 1 मार्क का डायग्राम होता है, 2 मार्क के 4 लेवल्स होते हैं। इतना याद रखोगे तो 4 तो लेवल्स हो गए ना, समझ आया? बट डोंट गो विद दैट 4 मार्किंग रूल। अगर एक भी लेवल रॉन्ग हो गया उसमें तो गया मार्क। तो जितना आता है लेवलिंग उतना करो। आई हैव नॉट ड्रॉन एरोज ओवर हियर, टेल मी वेयर द एरोज शुड कम टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। जी, अगर हमने एक्स्ट्रा किया, अगर वो गलत हो गया, अरे तो क्या हो जाएगा? तो जो तो है वो तो इसमें से मार्क्स हो जाएंगे ना, कुछ भी करता है। ओके, नेक्स्ट इज इफ आई टॉक अबाउट दिस एज अ बेसिक न्यूरॉन स्ट्रक्चर। एक तो नहीं है ना तुम्हारे बॉडी में, बहुत सारे ऐसे, बट अंडरस्टैंड दे आर लाइक इन ऑर्डर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स है। पर इतना याद रखो, कभी भी एक न्यूरॉन इज नॉट कनेक्टेड टू द अदर वन। Not connected as means it's not connected like this fixed. There is always a gap. Are you able to see? This is one neuron. सोचिए another neuron है, तो इनके बीच में एक गैप दिख रहा है तुमको। This gap is called as synaptic cleft, या फिर इसको बोलते हैं synapse. Synapse जरूरी because the synapse will help in transmission of the nerve impulse from one neuron to another. Are we good with this? क्या करता है वो? It helps in transmission of nerve impulse. Okay, when I always talk about nerve impulse, that word impulse का मतलब होता है जैसे messages. Okay, तो messages तुम्हारी body में कैसे travel करते हैं in the form of impulse. Impulse is nothing but a little wave of electrical disturbance. एक electrical wave of disturbance जो है वो ऐसे आती है। कौन receive करता है उसको सबसे पहले? Dendrite. Dendrite उसको receive करता है, then it travels through the cyton. ओके, साइटोन से ट्रैवल करते करते वो एक्सॉन तक जाता है, और फिर एक्सॉन से यहाँ जब आता है तो वो जंप करता है दूसरे न्यूरॉन पे, एंड देन इट ट्रैवल्स बैक। ओके, नाउ लिसन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइनैप्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन। इन ह्यूमंस देयर आर सम न्यूरॉन्स दैट कैन हैव एन एक्सॉन दैट इज अबाउट 1 मीटर। सो इमेजिन 1 मीटर इज फ्रॉम हियर टू हियर, इतना हो जाता है कुछ तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड से लेके यहाँ तक। And in elephants it can extend up to 3 meters. Axon. So this is the longest cell in the body. I hope you have read this somewhere in your 9th standard first chapter. If it has vanished, it's okay. Remember this. This is one of the longest cells just because उसका एक part 1 meter तक extend हो सकता है. Not all neurons, remember, but some of the neurons are so having lengthy of axon.
ये समझ आया? ओके, अब सुनो, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम पंप या हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लेस. Synapse is basically a little gap that is there between the point of contact between terminal branch of neuron and dendrites of another. Just what I said. If I recall this particular structure, I told you this is the axon ending और ये होगा दूसरा dendrite. समझ आ रहा है? ये हो गया दूसरा dendrite. Now there is a little gap which we call as synapse, and this synapse will help the impulse to jump from one neuron to another one. This is due to a chemical that is produced into that particular synapse region. अब ये chemical कौन सा होता है? इस chemical को बोला जाता है neurotransmitter. Which of the name says neurotransmitter? Transmitter का मतलब it helps in transmission. पर neurotransmitter नाम नहीं है. It's a common name. Proper name होना चाहिए ना, उसका proper noun होना चाहिए. तो उसका नाम है acetylcholine या acetylcholine. The chemical which is a neurotransmitter present in the synapse. अगर पूछा गया कभी तो तुम बोलोगे acetylcholine. It is given in a highlighted manner if I am not wrong. So you have to read this for your knowledge. Okay. Alright. Next up, the chemical is also broken down by an enzyme to make the synapse ready for the next transmission. तो एक बार ये impulse transmit करने के लिए बनता तो है, उसके बाद breakdown भी हो जाता है. फिर जब नेक्स्ट इम्पल्स आएगा तो वापस बन जाएगा. So this keeps on happening in your body. We go on to types of neuron. I'm just still on to the neuron part. ये न्यूरॉन जो है ये 3 टाइप का होता है. कौन से 3 टाइप का होगा? We have sensory, we have motor and we have association neuron. Remember this. If I talk about sensory neuron, तो sensory neuron क्या कनेक्ट करेगा? sensory neuron जो है that will connect the sensory cell to association neuron. कुछ मत बोल यार. Brain. Convert the impulse from receptor to the main nervous system. Okay? तो या तो main nervous system मतलब क्या हो गया? Brain and spinal cord. अब तुमको दिया सेंसरी न्यूरॉन जो है वो कहाँ से जाता है? सेंस ऑर्गन से. सेंस ऑर्गन से हमने कुछ पढ़ा था, रिसेप्टर सेल होता है, है ना? रिसेप्टर सेल होता है ना? तो स्किन इज अ सेंस ऑर्गन. सोचो यहाँ से अगर किसी को अगर इफ आई हैपन टू फील वेरी कोल्ड राइट नाउ, तो ये वाला जो मैसेज है ये कहाँ से जाएगा? ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना वो यहाँ से शुरू होता है एंड इट गोज एंड कनेक्ट्स टू द ब्रेन. तो जैसे ही इसने रिसीव करना लगा इम्पल्स, वो इम्पल्स यहाँ जनरेट होके इट इज ट्रैवलिंग. सो इट इज ट्रैवलिंग ड्यू टू द हेल्प ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन. अब ब्रेन उस प्रोसेस को उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, राइट? एंड व्हेन द ब्रेन हैज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, द कमांड विल हैव टू रीच टू पर्टिकुलर ऑर्गन. अगेन इफेक्टर ऑर्गन. क्यों इफेक्टर ऑर्गन मैंने बोला? क्योंकि इस पे इफेक्ट आएगा. Okay, so when a message is conveyed from the brain or spinal cord to an organ or gland, rather I would say muscle and gland. तो ये काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन. कौन करेगा ये काम? मोटर न्यूरॉन. ठीक है. And there are so many neurons in the body. So if there is number 1 neuron and it has to be connected to the other neuron, the number 2 of neuron, तो ये वाला कौन काम करेगा? यहाँ पे association neuron. Okay? Remember, association neuron is only present in the brain and spinal cord. तो वहाँ sensory neuron goes to the spinal cord, with the association neuron takes it to the brain, फिर नीचे आता है और फिर मोटर से वापस भेज देता है. Yes. समझ आया? Okay? Right now I'm feeling, मैंने एग्जाम्पल तुमको इसीलिए दिया ताकि तुम रिलेट कर पाओ. I'm sitting here, the AC is on to blast, I'm feeling very cold. The thermoreceptors on my skin has picked up that particular stimulus. वो stimulus को पिक कर दिया उन्होंने. अब सेंसरी न्यूरॉन जो है मेरी बॉडी में वो यहाँ से लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक. वहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, तो वो इंटरन्यूरॉन में प्रोसेस हुआ और वो मोटर न्यूरॉन को पास करता है. उतनी देर में प्रोसेसिंग हो गया. मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? वो मैसेज लेके आया किसके पास? द मसल्स ऑफ माय हैंड.
I will pick the remote and I will switch it off. इसके लिए स्किन को तो काम नहीं करना पड़ा, मेरे मसल्स को काम करना पड़ा ना. The muscles in my hand had to pick up the remote and switch it off. So either it is muscle or a gland. Do you remember endocrine glands किया था हमने? Endocrine glands में तुमने adrenal gland पढ़ा है? Yes. In the case of emergency, adrenal gland has to release a lot of adrenaline ताकि body के पास energy है और कुछ कर सके वो. So in some cases it is written as gland also. तो अगर मेरे brain या spinal cord ने message दिया किसी gland को release करने के लिए कुछ, then वो भी motor neuron से ही होगा ना. And association neuron, as the name suggests, will associate or connect the two neurons at a time. समझ आया? हमने सिर्फ न्यूरॉन पढ़ा है. I want you all to read those 3 points very carefully and then we go ahead with the nerve part. क्योंकि अभी थोड़ा confusion आएगा. क्योंकि nerve में भी 3 parts हैं, 3 types हैं. Okay, so I don't want you to get confused with them. You are asking something, Manish? मैम, but glands में pituitary gland एक particular hormone भेजता है, वो उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए करेगा, पर नर्व इम्पल्स से कैसे होता है? अरे बेटा, did we study about positive feedback mechanism? This is in this chapter. No, इधर ही endocrine. हाँ, endocrine. मैं तुमको एक एग्जांपल दिया था जिसमें वो बोला था कि जब the fetus is expelled out of the uterus, uterine wall वाला oxytocin, तो oxytocin जब impulse आ रहा है, impulse कैसे आएगा? When the head of the fetus is pushing near to the cervix, तो cervix के आसपास जो भी receptor cell है, उन्होंने मैसेज भेजा किसको? ब्रेन को ना, है ना? तो ब्रेन को क्या पता चला कि this is happening, this particular process is happening. ब्रेन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि you release more of oxytocin. So in this case, is it possible? है ना? ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन को बोला कि ये मैसेज लेके जाओ पिट्यूटरी को दो. और पिट्यूटरी के पास क्या आया मैसेज कि रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन, तो उसने और रिलीज कर दिया. ऑक्सीटोसिन तो यूटेरस को बंद करता है. नहीं बेटा, होता है. वो कॉन्ट्रैक्शंस करेगा. चलो, कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब दैट पुशिंग फोर्स विल बी स्टार्ट. बंद नहीं करेगा, पुशिंग करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट करवाएगा वो. Can you explain the negative positive equation? नहीं समझ रहा था. लीवर और पैनक्रिया वाला. नहीं, negative feedback, positive feedback जो अभी आप बोल रहे थे. पॉजिटिव में मैं तुमको क्या एग्जांपल दिया था? If I give you a feedback sheet right now and if you tell me all good, do how you are teaching right now, तो मैं जो टेक्निक यूज कर रही हूँ मैं वही करती जाऊँगी. पर अगर तुम्हें बोला एकदम भंगार बेकार है, तो अगर मैंने आज ये करवाया है, सिर्फ तुमको लिखवाया, तो मैं उसका अपोजिट करना चालू करूँगी ना. ठीक है? तो जब शुगर तुम्हारे बॉडी में लो हो जाता है, तो सॉरी हाई हो जाता है, वेट वाले एग्जांपल, शुगर हाई हो गया बॉडी में पागल की तरह, तो तुम्हारा जो लीवर है, सॉरी शुगर अगर बहुत हाई हो गया तो पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है ना, वो क्या करेंगे? इंसुलिन ज्यादा रिलीज करते हैं. तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो गया ना, तो वो सारा शुगर ग्लूकोज को पकड़ेगा और लीवर में ग्लाइकोजन बना के चूसने लगेगा, ताकि तुम्हारा बॉडी में से ग्लूकोज कम हो जाए. दिस कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. मतलब जो हो रहा है उसका अपोजिट करवाओ और पॉजिटिव जो हो रहा है उसको होने दो. ये सब लिखना पर समझ आया? ओके, रीड दोस 3 points very quickly and then we proceed. Quick.